Hello and welcome to this very, very special interview on Sports Today with a dear friend. I mean, we go back 15 years, Sachin's retirement series. As I was saying to a couple of colleagues, Shoaib literally picked me up like this when that kidney stone pain happened. And can't forget those memories. We launched his autobiography together in Delhi. We had tremendous fun. But more importantly, what a bowler he was. From that standpoint, did you think, Shoaib, we will be able to firstly Happy New Year to you. Better 21 to everybody in Pakistan, to everybody in the world, to your family. I just saw your kid. What a sweet kid he is. Touch wood, touch wood. So all the best to you and the family. And on that note, what a turnaround it was for India, which has given us so much of hope going into 21. Your thoughts? Yeah, I was saying this to Vikrant Gupta and a couple of other guys and my friend in Delhi. तो मैंने ये कहा था कि I think India is gonna beat the hell out of Australia. And he said, "Are you sure?" मैंने कहा, "Yes, definitely." तो कहते हैं वो क्यों? मैंने कहा, if batting performs, the middle order of India performs, and they go out all gun blazing somehow, I think India has a fair amount of chance to win the series. तो वो कह रहे थे यार थोड़ा सा आप ज्यादा कह रहे हैं, आप थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं. तो मैंने कहा यार देख लेना. So I just watched the game one fine morning. I woke up and I saw India's getting hammered for 36 all out for 36 and getting hammered by Australia. So I thought, yeah, you were 369. It can't be 3649, but it was 3649. But Boria, I always believe, characters are not made in crisis. Characters are exhibited. So I said that in my headlines in my YouTube channel. So the exhibition of the character from Indian team was just tremendous. I think this guy is so quiet and so calm. The guy called himself Ajinkya Rahane. He doesn't shout. He doesn't, does nasty thing on the field. He just stays quiet. He does his thing, which is a cool captaincy. And under his leadership, the guy is just all of a sudden performs. And no matter whatever he is about Ravi Shastri, Ajinkya Rahane and the young lot, but let me tell you, India's strength is not the people who are playing on the field, is the bench strength that India has. When they seize the opportunity, they go out there and just getting hammered for in a one test match and then coming back and winning the test match comprehensively. That goes to shows the character of India and the bench strength and the management. And at the same time, the people who are just out there willing to win the test match. And that was amazing to see that, some of the character like Bumrah, Ajinkya Rahane, this new guy, Gill, is amazing. Jadeja is playing a pivotal role. Somehow you put him in any situation, he's going to go out and perform for you. तो मुझे ये देख के बोरिया अच्छा लगा कि यार कि ये कैरेक्टर होते हैं जो दुनिया को देखने चाहिए. और ये कैरेक्टर who would have thought, 10-15 years ago, me and Boria were sitting here talking about Australia getting hammered by India or Pakistan or some other subcontinent team. Now it is happening. So now I want to see this series. Somehow I want to see this series with a full of clashes. And I want India to win the series because they made a great comeback. And they have shown a lot of courage and great character. And I think this guy is fabulous. Ajinkya Rahane 100 was just a turnaround. Super. Shoaib Akhtar saying he wants to win this series going into 21. इससे बेहतर क्या हो सकता है? But Shoaib ये बताओ, 36 all out. I mean उस दिन तो हम लोग almost national mourning में चले गए थे सबको ही. I mean cricket जो देख रहे थे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे हो सकता है. How is this possible? In a session you get bowled out for 36. As a sportsman, as a high performance performer, you have played some stellar roles for Pakistan with the ball and been part of dressing rooms. What is this turnaround? I mean, how difficult was it? Virat chala gaya, Shami injured ho gaya, Ishant nahi hai, Rohit nahi hai. Ajinkya Rahane ke liye ye turnaround kitna mushkil ho sakta tha aur kitna mushkil tha? I think, as I said it, your cricketers are very mature cricketers. They are very savvy. They have a great amount of knowledge. I was happened to talking to this young guy, Kuldeep, your left armer. So I was sitting and listening to him at the airport of Abu Dhabi. I was generally throwing him questions. So I was just wondering that, how much does he know about cricket? To my surprise, this guy knows a lot about cricket.
And every Indian that I worked in India for 5 years. Amount of love that I get after Pakistan is India. I have a huge fan following and a huge amount of respect that I have, Boria. You know that. मेरे दिल में नफरत नहीं किसी के लिए. You know this, right? So मुझे बहुत प्यार मिलता है और मैं बहुत लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ in India. So what intrigues, what is intriguing or what is fascinating for me, even the common guy, an average guy of India, he actually knows about cricket. And when it comes to a national team, these guys actually know about their games. They discuss about the games. I'm super surprised the knowledge that they have about the game. And again, mature है, savvy है, और उनको पता होता है कि हमने करना क्या होता है. So they don't come across immature people. So this is the one thing that I noticed in India, that they are very, very, very knowledgeable people when it comes to cricket, and because they have a lot of passion towards cricket. I mean, look at yourself. I mean, you are just like चलती फिरती किताब हो यार. Boria Majumdar has to be literally a book. चलती फिरती book. जो भी खोल ले तो वो बता देंगे. आप kind always थे शोएब, but उससे move now करते हैं for me थोड़ा. turn around, for me to turn around was, I think, Ajinkya Rahane's captaincy. I think teams are not made on the field. Teams are made in dressing rooms. I always believe that you don't play the match. You gotta have the match within the dressing room. And if you become one, and to understand one thing, that we gotta go out there, perform as a group. And in order to regroup yourself after getting hammered by Australia for 36, out for 36, that for me, I think the dressing room has played a lot of part into that. And I really believe that मैं समझता था कि Ajinkya Rahane is going to be a timid guy who's going to be out there on your face. लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि जब उसने लड़ाई की बैट के साथ, अजिंक्य रहाणे ने, वो लड़ाई हुई है पूरी. वो लड़ाई मैं देखना चाह रहा था. वो लड़ाई है क्या? वो लड़ाई थी बैट और बॉल की. वो लड़ाई थी कि इसमें अगर ईशांत ना हो, शामी ना हो, विराट ना हो, शर्मा ना हो, this is the half of the team, by the way. Kohli is a team and a half anyways. So is Rohit Sharma is a team and a half anyways. अगर ये ना हो और उनके बगैर जीत जाएं, तो फिर मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ? So he made sure that I'm going to come out as a brand with the bat and with the performances. और जब उसने कैप्टनसी की, और वो भी कैप्टनसी इतनी स्मार्ट की, बॉलिंग में अगर आप जाएं तो बुमराह को यूज किया उसने, और आपके बाकी बॉलर्स को यूज किया उन्होंने. सिराज यूज हुए. बड़ा मुश्किल था उनके लिए. वालिद साहब का लॉस होना उनके लिए, उनकी वफात हो जाना, फिर वो कैसे खेल जाना. आई थिंक दैट गोज अनदर थिंग गोज टू शोज दैट जिस ड्रेसिंग रूम में ख्याल कितना रखा जाता है, रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट रेस एंड क्रीड के ऊपर आप सोचते हो. ये पोलराइजेशन जो है आपकी, जो सेक्युलर थॉट है आपकी, जो आप एक दूसरे को आप चलाते हो, वो बड़ा मजे का था कि जहाँ पे आपने सिराज को हेल्प आउट किया और उसको फेंका अंदर, और उसने परफॉर्म करके दिया हिंदुस्तान के लिए. The best moment probably could have been for his father, but unfortunately couldn't see that. But that goes to shows again कि ड्रेसिंग रूम कितना साथ खड़ा है लड़के के साथ. वो ड्रेसिंग रूम से मुझे लगा कि यार, मुझे ये पहली दफा एहसास हुआ कि हिंदुस्तान इज रेडी टू विन द सीरीज, बिकॉज ये रीग्रुप कर सकते हैं. इनके अंदर दिल गुर्दा है, जिगरा है, और ये अगर इस टेस्ट मैच में अगर ये इनको मार गए तो मुझे नहीं लगता कि टेस्ट सीरीज अपने हाथ से जाने देंगे. आई थिंक द Ajinkya Rahane was the pivotal part, or the fitness of Bumrah and other guys, I think played a major role to regroup themselves. आपने बुमराह का जिक्र किया है, and again, who better than you? मुझे थोड़ा बुमराह के बारे में बताइए आप. To take over leadership, so basically he had to lead only a Siraj and a young attack. I mean, a fast bowling attack which is relatively new. So for Bumrah, who's only played 16 test matches, to step up like that was exemplary. So tell me about Jasprit Bumrah, your thoughts, your analysis. How good is he? Why is Jasprit Bumrah so lethal? Can you just decode Jasprit Bumrah for me? Let me begin with this thing. He is... His action खूबसूरत नहीं. He doesn't have a good action. He doesn't have a good run-up. The guy is looking very odd. He runs in the field. When he jumps in the popping crease, मजा नहीं आ रहा भाई देखने का. ये बातें हो रही थी जब बुमराह ने स्टार्ट किया. नहीं सर, ये क्या बात है, ये कोई मजा नहीं आया, ये किस किस्म का एक्शन है.
नहीं सर, ये छोड़ें, दफा करें जी इनको। ये टी ट्वेंटी का बॉलर है, हमें ट्राई आउट कर लो। अच्छा जी, ट्राई आउट कर लेते हैं बुमराह को जी, टी ट्वेंटी में आउट कर दिया। हाँ हाँ, टी ट्वेंटी तो खेल सकता है, वेरिएशन वेशन होंगी थोड़ी बहुत ऐसी। वनडे में डाल के देखें इसको, वनडे में परफॉर्म कर दिया। हाँ हाँ, वनडे में भी परफॉर्म कर सकता है, चलो ऑड ऑड मैचेस में परफॉर्म करे, फिर वो टेस्ट मैच में परफॉर्म कर जाए, तो टेस्ट मैच में परफॉर्म कर गया। और भाई चाहते क्या हो बुमराह से, भाई ही इज अ स्पेशल टैलेंट। जब से वो आया है क्रिटिसिज्म आते जा रहा है, उस पर आते जा रहा है कि यार नहीं नहीं नहीं, फिटनेस नहीं होगी, अब बैक टूट गया, बैक के बाद वापस नहीं, बट यू नो व्हाट, दिस गाय हैज अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। यू नो व्हेन ही रन्स दिस फॉर 5 सेकंड, उसके 5 सेकंड में उसकी दुनिया में से 5 सेकंड में या बैट्समैन होता है, या उसकी जो आर्ट ऑफ टेकिंग विकेट, जो सेंस है उसके पास, वो होती है। बाकी अगर वो देखे, ही इज अ ग्रेट कैरेक्टर। ये टी ट्वेंटी में प्रूव किया है इसने, बुमराह ने वनडे में प्रूव किया, बुमराह ने टेस्ट मैच में प्रूव किया, बुमराह फिटनेस में प्रूव किया, और ही इज कमिंग आउट टू बी द मोस्ट मोस्ट अनयूजुअल ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर। इंशाल्लाह अगर हो, ऐसा हो, अगर वो इसकी फिटनेस रहे, बैक टूटे ना उसकी, तो लंबा खेल सकता है। सो लोगों को जितना जितना लोगों ने उसको मना किया, लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, उसके एक्शन के ऊपर, उसके उसकी फिजिक के ऊपर, और उसके अनऑर्थोडॉक्स स्विंग के ऊपर, तो उसने वैसे ही प्रूव किया आगे जाके कि भाई साहब मुझे देखें मैं क्या करता हूं ऑन द फील्ड, जो उसने प्रूव करके दिखाया। व्हाट ही डज इज बेस्ट इज, लेट मी टेल यू, ही प्लेज विद हिज स्विंग्स। हाउ डज ही प्लेज विद इट? ही ये अपना ट्रैप सेट करता है। इसको पता है कि इसका एक तो कंट्रोल बहुत अच्छा है, सिंपल एक्शन है। व्हेन इट कम्स टू बुमराह, फॉर बुमराह सिंपल इसका एक्शन है, इसको इतना कंट्रोल है इसकी लॉकिंग रिस्ट के ऊपर, इसकी आर्म स्पीड के ऊपर, इसके पास इतना कंट्रोल है। फिर इसको लेंथ का पता है, जो कॉरिडोर है इसकी लेंथ की, कॉरिडोर जहां जिस कॉरिडोर में जो 2x2 का कॉरिडोर होता है, अगर बुमराह को आप कहें कि 20 बॉलें या 30 बॉलें या 60 बॉलें यहीं फेंकनी, तो वो दुनिया का वाहिद बॉलर होगा जो वहीं फेंक सकता है। तो शायद मैं चाहता हूँ उमेश यादव भी यही करता, क्योंकि उसके पास फिटनेस है, बड़ा खूबसूरत एक्शन है उसके पास। लेकिन ये वो एक्यूरेट फास्ट बॉलर है, जिसको किसी वक्त किसी जगह भी आंख में पट्टी बांध के भी बॉलिंग करवाओ तो ये वही बॉल फेंकेगा। बट प्लस what he has is, no one understand that he knows the art of taking the wickets. He has the art of taking wickets. How do you do that in test matches? वेरिएशन तो होगी वनडे में, समझ आ गई, टी ट्वेंटी में आपने कर लिया, आगे पीछे स्लोअर वन, ये वो अंदर बाहर, लेकिन यहाँ पे आपको 4 बॉलें ट्रैप में करनी पड़ती हैं, और फिर आपको 2 बॉलें ऐसी जो विकेट टेकिंग बॉलें होती हैं जिसको आउट करना पड़ता है। ये वहां पे कैपिटलाइज करता है। अगर आप सब मुझसे पूछते हैं ओवर द विकेट आए, तो ये क्रीज सबसे अच्छी यूज करता है। ये क्रीज क्लोज टू द स्टंप आ जाएगा, ये वाइडर ऑफ द क्रीज चला जाएगा, ये मिडल ऑफ द क्रीज में आ जाएगा, ये खेलता रहेगा वेरिएशन के साथ। और इसकी इसकी वेरिएशन जब ये खेलता रहता है, जब वेरिएशन के साथ, तो इसकी लेंथ बड़ी छोटी होती रहती है, बड़ी छोटी, लेकिन ज्यादा कॉरिडोर से बाहर नहीं होती। अगेन दैट यू नो, इसके पास वो है, अवे स्विंग करता है लेफ्ट हैंडर से, उसके साथ वो क्लोज से स्टंप आ जाएगा, वो हवा में कमिट कराएगा आपको, लेकिन बॉल छोड़ता हुआ जाएगा बल्ले से। अब वो दुनिया के मोस्ट ऑफ द बैट्समैन बोरिया हवा में कमिट कर जाते हैं, ये हवा में कमिट कराता है आपको, लेकिन बॉल कुछ वे जा रहा होता है, बल्ला आपका निकलवाता है ये। जब आप बाहर के लिए तैयार होते हैं, तो देन ही वाइडर द क्रीज जाके ये बॉल अंदर लाता है, जहां पे लगता है आपको ये बॉल बाहर करेगा। अगेन दैट यू नो, ही ब्रिंग्स द बॉल इन through the wider the crease, because he plays with the length of the pitch, but at the same time the way he uses it, he uses the air. How does he use the air? No one understand that. ये with the wind कहाँ पे जाता है? अगर आप इसकी बॉलिंग देखते रहे, ये मेरे ख्याल में पहला फास्ट बॉलर मुझे हिंदुस्तान का लगा जिसको घास फेंक के हवा चेक करता रहता है कि आज हवा यहाँ से चलेगी, दिन में यहाँ से चलेगी, शाम को यहाँ से चलेगी, मैं ये स्विंग करूंगा, मुझे यहाँ पे हेल्प होगी, मुझे अगेंस्ट द विंड जाऊंगा, मुझे ये हेल्प मिलेगी। ये सारा दिमाग इसका काम कर रहा होता है। सो दैट टू माय सरप्राइज, बिकॉज दिस इज आवर आर्ट ऑफ दिस इज द आर्ट ऑफ पाकिस्तानीज, that we used to know, okay, how do you used to play with the wind. And I mean, Boria, to your surprise, we used to actually, you know, हम दिन में आया करते थे, मैं, वसीम भाई, वकार भाई, हम सारा टाइम में हवा को नोट कर रहे होते थे स्टेडियम में। यार ये इस कॉरिडोर में हवा ऐसे आ रही है, अगर मैं यहाँ से बॉलिंग करूंगा तो रिवर्स स्विंग होगा, नहीं यहाँ से नहीं होगा, अच्छा नया बॉल यहाँ से करते हैं,
कराची में यूनिवर्सिटी, यू बीन टू पाकिस्तान मेनी टाइम योरसेल्फ, तो कराची में हम करते हैं पवेलियन एंड से करते हैं बॉलिंग, ये हमें हेल्प करेगा थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए। चलें, ये दिन के टाइम में हवा यहाँ से आएगी, अच्छा चलो यार हम राउंड द विकेट यहाँ से करते हैं पवेलियन यूनिवर्सिटी एंड से। तो हमें बायो मैकेनिक्स पता थे अपने बॉडीज के, हमें एयर डायनामिक्स पता थे बॉलिंग के, हमें ये पता था कि हमें कितना स्विंग करना है, कितना स्विंग किस टाइम होगा, बॉल कितना स्विंग किस टाइम किस वक्त करेगा। कराची में दिन के टाइम हमें स्विंग इतना मिलेगा, शाम को इतना मिलेगा। टू माय सरप्राइज, I think this is my assumption that he knows these sort of things that I hardly came to know about the other fast bowlers that who knows these sort of things. और plus you know the way he uses the crease, अगर ये जाएगा राउंड द विकेट जाएगा, खबरे को बॉलिंग करना है, अब उसको पता लग गया कि वो फंस गया ओवर द विकेट, वो नहीं बॉल कर पाएगा, अब नहीं आउट हो रहे उससे, तो वो राउंड विकेट आएगा। लेकिन अगेन उसका बॉल आके ऐसे जाएगा बाहर, लेफ्ट हैंडर को फिर कमिट कराएगा हवा में, फिर उसको लेंथ पे आउट करेगा। He is a very, I think he's the most smartest fast bowler. Probably Mohammad Amir, him, or the best I've ever seen. Yaar, Boria, no one I think believes that when I say this. Even bigger than Wasim Akram, that the guy that I've seen him bowling with my own eyes and right there and during the test matches, that has to be Mohammad Asif. मैंने बैट्समैनों को रोते हुए देखा, उसके सामने रोते हुए देखा। आई एक्चुअली सॉ लक्ष्मण, आई सेज व्हाट द हेल आई एम गोना डू अबाउट दिस गाय, मैं क्या करूं इसके खिलाफ। बॉल आउटस्विंग में करता है, लगती है तो पड़ के डंडे में लग जाती है, मैं करूं तो करूं क्या। हालांकि लक्ष्मण से ज्यादा टेक्निकल कौन सा करेक्ट हो सकता है। एबी डिविलियर्स तो रोना शुरू हो गया था एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में, वो तो रोना शुरू हो गया था, लिटरली उसने बल्ले मारना शुरू कर दी, मैं करूं क्या, अंदर खेलने जाओ बाहर खेलता, बाहर खेलने जाओ अंदर खेलने चलता। बट अनफॉर्चुनेटली दिस गाय गॉट हिमसेल्फ इन्वॉल्वड इन मैच फिक्सिंग, और व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट आमिर और मोहम्मद आमिर। उसके बाद मुझे लगा कि बुमराह इज द ओनली गाय, द स्मार्टेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ प्रेजेंटली। इस पे क्रिटिसिज्म ये था कि ये फिट नहीं रहेगा, और मैं देख रहा था, बड़ा क्लोजली देख रहा था इसकी फिटनेस को, यार ये कर पाएगा, ये टेस्ट मैच निकाल जाएगा, ये बॉलर तो अच्छा है, इसको स्विंग का भी पता है, क्रीज का भी पता है, राउंड विकेट का भी पता है, बाउंसर इसके बड़े तेज है, डिसेप्टिव है और शार्प है, एंड गुड ग्रेट कैरेक्टर इज दिस गाय इज। बट क्या ये जो आप कैरेक्टर के बारे में अभी आपने जिक्र किया, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। जब फास्ट बॉलर देखते हैं, मान लीजिए विकेट नहीं आ रहा है, तब एक कैच गिर गया तो पीपल गेट एंग्री, एंग्शियस, बॉडी लैंग्वेज ये हो जाता है, आप रिएक्ट करते हो, ये तो हंसता रहता है। आई मीन बॉलर बैट्समैन 3-4 बार एज मिस हुआ, ये फिर भी हंस रहा है। So उसका ये भी ना एक, I mean, it is quite incredible that every time he has control over his emotions. Let me tell you, no one's going to tell you this before. He has the aggression in his length, not in his body. Wow. This is how I'm going to define Bumrah. He has the aggression in his length, or length of the ball. जस्ट लेंथ पे बॉलिंग करता है, उसमें एग्रेशन है, ये वहां सोचता है, ये वहां पे मारता है इनको बैट्समैनों को, ये वहां से पकड़ता है इनको, इसकी बॉडी में एग्रेशन नहीं है। इज अ नाइसेस्ट गाय दैट आई प्रॉब्ली केम अक्रॉस, बट व्हेन ही कम्स टू बॉल दिस 5 सेकंड, इसकी जो एग्रेशन होता है, जो 5 सेकंड एग्रेशन इसकी लेंथ में होता है, इस कॉरिडोर के अंदर जो होती है लेंथ, इसमें बहुत एग्रेशन होता है। उसमें भी कहता है कि तू मुझसे बेहतर नहीं है, you're not gonna be better than me when I'm bowling against you. This is the attitude of Bumrah. And that, to my surprise, you know, again I'm saying to my surprise that he knows about the bowling. और मुझे अच्छा लगा कि the guy thinks, और is a team man, good fast bowler, a match winner, and मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे muscle mass, again मैं हार्दिक पांड्या को भी कहा था दुबई में, मैं क्या, तो मैंने उसको जो बॉलिंग कर रहा था तो आई वाज कमेंटेटिंग, तो मैं नीचे ग्राउंड में चला गया, तो हार्दिक मैं कहा बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारे जिस्म के ऊपर इतना मसल लगा हुआ, टोटल इतना मसल, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आईपीएल भी खेल लोगे, इंडिया के लिए आपने 10 टूर भी करने हैं, फिर आपने मैच बॉलिंग भी करनी है, फिर आपने ट्रेनिंग भी करनी है, इतने मसल के साथ किधर सर्वाइव करोगे। तो मैं उसकी बैक देख रहा था कि बैक पे मसल लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, तो मैंने कहा भाई टूट जाओगे। एग्जैक्ट 4 ओवर बाद उसकी बैक उड़ गई थी उसी मैच ड्यूरिंग, मैं रवि शास्त्री के सामने खड़ा होकर कह रहा था, और रवि भाई भी कह रहे थे इससे सीखो शोएब से, जो ये दलेरी से ये बॉलिंग करता है, ये डराता था हमें। सो मेरा ये जो मेरा जो कंसर्न है, जो इससे मैं मुझे जो एतराज हो सकता है
कि देखिए मसल मैस इसका थोड़ा सा आप देखें, मैं आपको फिर ट्रिक ऑफ द ट्रेड बता देता हूँ कि हम सारे फास्ट बॉलर्स जो पाकिस्तान के थे, हम ये 1 इंच है, ये 2 इंच, 3 इंच, हम मेक श्योर करते थे कि हमारा जो बाइसेप है हमारा 18 इंच का हो। हमारा थाई का साइज 28 इंच का, मेरे जो अपना बता रहा हूँ मैं, 28 इंच थाइज के साथ मैं टेस्ट सीरीज के लिए अंदर जाता था। बोरिया जब मैं 3 टेस्ट मैच खेल के निकलता था ना बाहर, तो मेरा 25 का थाई रह जाता था, 25 इंच का थाई रह जाता था। फिर मेरा जो बाजू था बॉलिंग कर 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 करके, मेरा जो बाइसेप था वो 16 रह जाता था। मेरा बॉडी वेट तकरीबन 7 किलोग्राम गिरता था। मेरा पानी जो था वो ऑलमोस्ट ड्रेन आउट हो जाता था। हम रिहैब में जाते थे पहले। So before we get into the series, we gotta have a muscle mass. You gotta overload your muscles. Not इतना बड़ा नहीं कि जितना बॉडी बिल्डर लगे, but इतना मसल हो जब आप, because the cardio is a muscle wasting exercise. And when you're running in as a fast bowler, you are wasting your muscles. And when you have a lesser muscle and you're going into the series, then you end up hurting your joints. Wow. आपके लिए बड़ा जरूरी है, जो फास्ट बॉलर मेरी बात सुन रहे हैं आपके तवसत से, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं, देखो गाइस, अपने जिस्म के ऊपर मसल लगा के चलो, क्योंकि जब प्रेशर सिचुएशन में होते हैं, सिचुएशन आपसे ये नहीं कह रही होती कि आपने 2 ओवर आराम से करने, 3 ओवर आराम से करने हैं। आराम से आप ओवर नहीं कर सकते, सिचुएशन आपसे डिमांड कर रही होती है कि चलो भाई। और दूसरी, मैं इसको भी एलैबोरेट करता हूँ, फिटनेस के लेवल पे भी मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। देखें, हमारा जो मुद्दा होता था ना, मेरा या वसीम अकरम या वकार भाई का, हम शाम सुबह चलते थे, शाम तक हम ऐसे ऐसे क्रूज करते थे, यहाँ तक आ जाते थे शाम तक। हमारी पेस का जो लेवल था वो 135 या 140 से शुरू होता था, 145, 145, 150, 150 करते करते 155 क्रॉस करते थे जब हम, और फिर हम स्टेबल रहते थे वहां पे। और फिर मेक श्योर करते कि शाम को भी हम इतनी तेज दिखे जितना हम सुबह थे। बट हमारे लिए क्या होता था कि हम तेज इसलिए होते थे कि हमारा रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता था। जब रिवर्स स्विंग होता था तो हमारे पास एक्स्ट्रा यार्ड पेस आ जाती थी। हम अगेन अनदर ट्रिक मैं बता देता हूँ, जो बॉलिंग कर करके हम थक जाते थे इस एक्शन से या इस एक्शन से, अगेन मैं सारी जो राज है मैं आपको बता दूंगा आज। इस एक्शन से करके, इस एक्शन से करके या इस एक्शन से करके जोड़ थक जाते हैं बोरिया। Repetition of the joints makes the joint tired. So when we come in the lethal part of the test match, which is the mid of the match after the lunch, जो हमारा होता है, you'll notice that our performances of Pakistanis fast bowlers are peaking after the lunch. Why? That our bodies got into the rhythm. We have a bit of a feel of the ground and the wind and everything. At the same time, the ball is settling down with our wishes, our own wishes, that ki itna swing karega, itna swing karega. Then what we do, Boria, that's the trick of the trade, I'll tell you. What we used to do for the reverse swing, we change our actions. We used to change our actions. मैं ये करता था कि मैं अपना हाथ पीछे ले जाता था। The last part of my body who actually delivers the ball is my tip of my fingers. These are the two things, and my toe. This is the last two things who was actually exporting my energy into the pitch. लेकिन उसके लिए हम क्या करते थे, हम एक्शन चेंज करते थे। एक्शन चेंज करने से होता था कि एक तो जो मसल टायर्ड हुआ सारा दिन बॉलिंग करके 10 ओवर कर करके 12 ओवर कर करके ये जान नहीं रहती थी। फिर उसके डायनामिक्स हम चेंज करते थे। हम जब हम डायनामिक्स चेंज करते थे तो हम हवा की रेजिस्टेंस के साथ खेलते थे। रेजिस्टेंस क्या होती है? हवा, कलकत्ता में जैसे मुझे याद है सचिन बैटिंग कर रहा था, अब हम जोर जोर से बॉल ना हवा में मार रहे थे, क्योंकि हवा का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए थे, 1 लाख का क्राउड बैठा हुआ है, हवा आ नहीं रही। जो फार एंड है ना, जहाँ पवेलियन की लेफ्ट साइड पे अगर देखोगे, वो खुला हुआ था। तो मैंने वसीम से कहा, मैं वसीम भाई यहाँ से बॉलिंग करता हूँ, मैं हवा यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा मदद मिल रही है। तो कहते हैं अच्छा चल देख लो कि उस साइड से भी मेरे ख्याल में आफ्टर द लंच उस साइड से भी हवा आएगी, इस तरफ जो राइट साइड ऑफ द स्टैंड, यहाँ से कर लो। बट मेक श्योर करना कि अपना एक्शन चेंज करके वैसी बॉलिंग करना जिस पे आपका जोर ज्यादा लगे। अब जब हम जोर लगाते थे बोरिया, जो हमारा टायर्ड मसल था हम उसको हटाते थे
और एक्शन चेंज करते थे, और हम हवा में तेज फेंकते थे तकरीबन हाफ यार्ड क्विक, तो बॉल कट करे थ्रू एयर, कट करे थ्रू एयर, बट राइट टिल द एंड। अगर ये कट हो रहा है ना, ये कट हो रहा है, तो फायदा नहीं, ये जाए और ये कट हो। तो इसलिए हम लीथल होते थे कि हम डायनामिक के साथ खेलते थे और एक्शन चेंज करते थे। दूसरी चीज, जब भी बोरिया जो फास्ट बॉलर आपके प्लेटफॉर्म पे शोएब सुन रहे शोएब हैं, एक जी सेकंड, सचिन मुझे कह रहा था कि आपका जो जी फास्टेस्ट बॉल होता था, वो जी आपका एक्शन, वो आपको क्लोजली फॉलो करके आपका जो रोटेशन ऑफ शोल्डर वो फास्टर हो जाता था, डबल। ही सेड मैं शोएब का वो नोटिस करता था, एंड दैट्स व्हेन आई वुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज हिज फास्टर बॉल। और इज दैट यस बिकॉज ही यूज्ड टू टेल मी दैट I was watching him very closely and I had figured out that this is the ball which where his action is different with his fastest ball. यस नो, सचिन इज अगेन इज इंस्टीट्यूशन। सो जो सचिन तेंदुलकर सोचता है गेम के बारे में, बहुत कम लोग सोचते हैं ऐसा। और मुझे तो बड़ा दुख होता है इस चीज का कि हमारे प्लेइंग डेज में हमारी इतनी शायद दोस्ती रही नहीं, हमें इतनी डिस्कशन मिली नहीं आपस में करने के लिए। और बट अनफॉर्चुनेट, बिकॉज ही इज द ग्रेट थिंकिंग माइंड। एंड प्लस जो मुझे जो फैसिनेट करता था बंदा, वो सौरव गंगुली था। वो बहुत ही तगड़ा कप्तान था, वो बहुत ही बेहतर आदमी था। मैं तो सरप्राइज होता था कि ऐसी कप्तानी करता है कि उसके पास बॉलर होते नहीं थे, लेकिन उसको मैच जीतना होता था। लेकिन ही डिड दैट अगेंस्ट अस इन पाकिस्तान। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मैं इसलिए चेंज करता था एक्शन कि मुझे पता था कि अगर बैट्समैन का बल्ला नीचे जैसे डिसीव करना हो, हमने बैट को डिसीव करना हो, that I have to be quicker in the air. Again, being a fastest bowler, I still have to be quicker. So मुझे वो लेंथ डिसीव करना था। चलिए तो फनी स्टोरी, अज्जू भाई खेल रहे थे कोलकाता में 98 में। सो आई वाज रियली टायर्ड, तो मुझे वसीम ने कहा यार छोटा है यार, रन अप कर ले यार, जल्दी ओवर कर, खत्म कर। मैं कहा वसीम बहुत थक गया हूँ, क्या छोटे से कर दे रन। तो अज्जू भाई ना, अजरुद्दीन भाई, वो एकदम फ्रंट फुट पे आगे आ गए, नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट कि मैं छोटे रनर से भी तेज बॉल करता हूँ। तो अज्जू भाई के डज इधर लगा बॉल आके, तो कहते हैं अबे भाई छोटे से भी डालता है तू, छोटे से भी डालता है, क्या कर रहा है यार, तेज से भी डाल, दूर से भी तेज डालता है, यहाँ से भी तेज डालता है, क्या कर रहा है। और मैं कहा सॉरी अज्जू भाई, मैंने कहा आप आगे आ रहे थे, मैंने आपको मार दिया बॉल। सो व्हाट वी डू इज, जितना आप क्लोज, अब शायद मैं स्टैंडिंग में खड़ा होता, मैं आपको बेहतर एक्सप्लेन कर लेता। जितना आप लोड करते हैं, ऐसे लोड, ऐसे सचिन जो कह रहा था वो ये लोडिंग का बता रहा था आपको। हमारा अगर देखें, हमारा जो पिछली टांग का जो प्लेटफॉर्म है, ये टांग का जो प्लेटफॉर्म, लेफ्ट टांग का प्लेटफॉर्म, फास्टेस्ट बॉलर जितने भी हैं उनका जो प्लेटफॉर्म है पिछली टांग वाला, वो पाँव ऐसे पड़ता था, ये पाँव ऐसे पड़ता था, फिर हम ड्रैग करते थे पाँव। जब तक प्लेटफॉर्म ठीक नहीं होगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं ठीक होगा, और ऊपर आपका जो पिवट है, जो आपके बॉडी का पिवट है, वो तभी अच्छा मूव कर पाएगा जब आपकी दोनों टांगे ऐसे लैंड होंगी। और जब लैंड होती हैं तो आप देखेंगे कि हमारी, अगर आप मेरा वीडियो निकालेंगे या ब्रेटली का निकालेंगे, हम दोनों की नीज जो है ना, पिछली और अगली नीज पड़ती ऐसी थी, देखें पड़ती ऐसी थी, ये अगली नी है, ये पिछली नी है, जब पड़ती थी। और जब फिर हम टिल्ट करते तो हम दोनों की नीज टुवर्ड्स द स्टंप होती थी। हमारा सारा जो फ्लो है ना, हमारा सारा फ्लो जो है, वो ऊपर से, नी से ऊपर होता हुआ टोज पे आता था, और फिर ये जो फिंगर से यहाँ से रिलीजिंग पॉइंट होता था हमारा। तो प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बुमराह का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बेशक रन में इंप्रेसिव ना हो, लेकिन व्हाट यू सी इज प्लेटफॉर्म, द वे ही लैंड्स, उससे पेस जनरेट होती है, क्योंकि सारी ग्रेविटी आप पुल करते हो अपने लेफ्ट आर्म से। दूसरा, आप जो वो यहाँ से लोड करता है बुमराह, यहाँ से ऊपर लोड करता है, यहाँ से। मैं और ब्रेटली ऐसे लोड करते थे, यहां से मार के हवा को बॉल पकड़ा होता था, हम यहां से ऐसे लोड करते थे, फिर पीछे जाते थे। सो हमें ग्रेविटी के साथ जितना हम पास रहते थे हम, तो हमारी पेस बढ़ती रहती थी। बट अगेन, हमारा जो पिवटल पार्ट था वो हमारा लैंडिंग फुट था, जो बैक फुट से कहते हैं। सो आई थिंक बहुत सारी, लेकिन बहुत सी चीजें समझने की हैं और ये सीखने की चीजें हैं जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी। The other thing, Shoaib, is do you think this Australian batting attack now is sort of fragile against Ashwin and Bumrah? As in, there is a mental issue also from the standpoint of Australia? I think this is the most weak batting lineup that I came across Australia, to be honest with you. It is the most fragile, it's the most weak. और अगर उनके ओपनर्स देखें और उनका मिडल ऑर्डर देखें, स्मिथ को निकाल के,
is the most weak batting lineup that he came across. और मुझे तो उनकी बॉलिंग अच्छी है. मुझे लगा कि हिंदुस्तान पता क्यों हारा पहले टेस्ट मैच, अगर मुझसे पूछते हैं, अगर ये कोड क्रैक कर सकें, मुझे लगा इससे हारा है, पिंक से. हाँ, हो सकता है. पिंक बॉल से हारा है. पिंक बॉल आप माने न माने नजर नहीं आता, अच्छा नजर नहीं आता, क्योंकि एक देखें, आपकी एक डोमिनेटिंग आई होती है. अगर सचिन को देखें, एम्बिडेक्स्टर तो नहीं है, लेकिन सचिन को देखें, लेफ्टी खाना लेफ्ट खाता है. नहीं, एम्बिडेक्स्ट्रस है. आई मीन वो एम्बिडेक्स्ट्रस है 100%. ओके अगेन, वो खाना लेफ्ट हैंड से खाएंगे सचिन, बॉलिंग राइट हैंड से करेंगे, बैटिंग राइट हैंड से करेंगे. सचिन तेंदुलकर को कोई ये समझ नहीं पा रहा. सचिन तेंदुलकर को मैंने 10 साल पहले कहा था कि सचिन तेंदुलकर की दोनों आंखें काम कर रही हैं, तो सारे मुझ पे हंस रहे थे. तो मैंने कहा यार हंस क्यों रहे हो? तो मैं कहा डोमिनेटिंग आई, जो मेरी डोमिनेटिंग आई है वो मेरी राइट वाली है बोरिया. तो मैं बैटिंग करता हूँ, मैं राइट आइड से देखता था, राइट आइड से. मुझे लेफ्ट से कुछ नजर नहीं आता भाई. मैं देखना भी चाहूँ लेफ्ट से, मैं नजर आ रहा है, लेकिन मेरी डोमिनेटिंग आई मुझे फोकस करती थी. मेरा रेटिना मुझे फोकस कराता था कि ये बॉल यहाँ गिर रहा है. मैं कर सचिन के दोनों साइड की आंखें काम कर रही थी. अगर आप देखें, उसका जो डोमिनेटिंग हैंड वो लेफ्ट भी है और राइट भी है. उसका ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट था, जो ये काम कर रहा है अपना दिमाग वाला भी, ये सब भी काम कर रहा है, उसका ये भी काम कर रहा है. उसकी ये भी आंख काम कर रही है, ये भी आंख काम कर रही है. डेविड वार्नर अगेन, डेविड हसी अगेन, एम्बिडेक्स्ट्रस. अगर आप देखें, ये सारे ही अगर देखें, इनके दोनों हाथ काम कर रहे हैं, इनके दोनों आंखें काम कर रही हैं, इनके दोनों पांव काम कर रहे हैं. आप नोट कर लेना, आप इनको बेशक आप नोट कर लेना, ये ग्रेट प्लेयर एम नहीं बन गए. ये इनकी कैपेसिटी क्वालिटीज अगर निकाली जाए आपको, तो आपकी इनके फुटवर्क, इनके दोनों पांव चल रहे होते हैं नीचे से, इनके प्लेटफॉर्म ठीक होते हैं, इनके दोनों हाथ काम कर रहे हैं, रिस्ट काम कर रहा होता है, दोनों रिस्ट काम कर रहे होते हैं. वार्नर को तो उल्टा सीधा छक्का मार रहा होता है. उसे दाएं हाथ से बैटिंग करो, दाएं हाथ से कर लेगा. सचिन को बोलो, सचिन भी कर लेगा. सो मैं जनरली ये कह रहा हूँ कि मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप में वो डेप्थ नहीं है यार. मुझे वो डेप्थ नजर नहीं आई यार. किधर बोरिया, यू हैव कवर्ड दिस क्रिकेट फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, फॉर 30 years almost. Where is Justin Langer, Matthew Hayden, then Ricky Ponting, then Steve Waugh, then Mark Waugh, then जिसको प्लेयर मानते ही नहीं, जिसको मैं सबसे बड़ा प्लेयर मानता था बोरिया, Damien Martin. Damien Martin. Yeah. He used to play me with so much ease that I used to get so much frustrated with this guy, and I used to get into fights with him, and he never used to, talk back to me. So I used to curse him like as anything. I says, listen, you make me look a very ordinary fast bowler, by the way. So he said, why? Mecca, that you stay back, you wait till the ball come and hits your bat, and you play under your chin, and plus you're ready for the cut shot. You're great puller, and you're great driver of the ball, and plus you know where the gaps are. So I don't know what to do against you. So Gilly again is the formidable force, but again these are the guys this is the batting line that I was up against. So compare that. I'm not comparing the era, but I'm just comparing the quality of the cricket. True. I think that the Indian bowling has cracked the code, and now they're well on the way to win the Test series. And if India somehow should not lose the match, because मुझे लगा कि the pink ball kicks through in the air a bit quicker than a red ball. It nips through. Plus मुझे लगा कि इनको समझ नहीं आई हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप को, कि शॉट्स चेक नहीं कर पाए अपने. मुझे ये लगा कि the pink cherry, it cuts through the air a bit quicker than a red ball. So मुझे लगा कि इनकी बैट स्पीड मैच ही नहीं कर पा रही थी. दूसरा, इनका बल्ला निकल रहा था, बार बल्ला निकल रहा था इंडियंस का, बिकॉज दे कम एक दुबई से खेल के आए हैं, फिर वो हिंदुस्तान में खेलते बल्ला निकलता है बल्ला. सो बैट निकलता है. तो मुझे लगा कि वो बैट निकलने की वजह तो एक तो समझ आती है कि चलो वो जो पैदाइश से लेके सारी क्रिकेट वो हिंदुस्तान में खेले हैं, तो 4 साल बाद टूर करते हैं, तो 4 साल टूर बाद आप क्या समझते हैं बल्ला का बैट के साथ जुड़ा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा. लेकिन मुझे लगा कि जो बॉल इनके पल्ले नहीं पड़ रहा था, दैट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, कि वो मुझे लगा कि पिंक वाज गोइंग थ्रू क्विकर इन द एयर और ऑफ द पिच पड़ के स्किड थ्रू हो रहा था.
जिससे मुझे लगा कि हिंदुस्तान वुड नॉट अंडरस्टैंड और एबल टू टू कंट्रोल दैट काइंड ऑफ द पेस ऑफ द पिच, जिस वजह से मुझे लगा वो आउट हुए। और शॉट्स बहुत खेल रहे थे। दिस इज नॉट द वे इट इज, आप आईपीएल नहीं खेल रहे हो। आईपीएल आप खेल गए हो ना, आईपीएल का एक खुमार जहन में चढ़ा हुआ, उसी खुमार में आप चले गए अंदर टेस्ट सीरीज में। आप चले गए उसमें T20 में और टेस्ट सीरीज में चले गए, तो वो उतर नहीं रहा आपके अंदर से कि यार आईपीएल छोड़ दो, अब टेस्ट मैच शुरू हो गया। टेस्ट मैच में मुझे लगा विराट कोहली जल्दी कर रहे हैं, बाकी बैट्समैन जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम देते। तो आई थिंक द माय मेन फैक्टर इज फॉर इंडिया टू लूज इज द पिंक बॉल। एंड नाउ रेड बॉल आया, ऑल ऑफ सडन बॉलिंग कैसे चेंज होगी इंडिया की, बैटिंग कैसे चेंज होगी? वही बैट्समैन है, ऑलमोस्ट वही बैट्समैन है, तो वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। सो आई थॉट विकेट वाज विद बेटर। और शाम के वक्त पिंक बॉल नजर नहीं आता। बोरिया आप जो मर्जी कह लें, जो मुझे मर्जी को एग्जांपल देके समझा लें कि पिंक बॉल शाम को बेहतर नजर आता है रेड से, आई एम सॉरी। रेड बॉल दिन में कुछ और नजर आता है, शाम के वक्त वो भी डल होके मुश्किल हो जाती है। और अगर पिंक बॉल आप शाम के वक्त खेल रहे हैं और थोड़ी सी स्किडियर ट्रैक पे खेल रहे हैं, so it's not easy to handle for the subcontinent batsman, और ये पल्ले पड़ गया टेस्ट मैच बिकॉज ऑफ द पिंक बॉल। सुपर सुपर। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, मोहम्मद सिराज, आपने उनका वालिद के बारे में जिक्र किया। एक लड़का डेब्यू कर रहा है और डेब्यू टेस्ट मैच में इतना प्रेशर, उमेश भी बाहर चला गया, टेकिंग द लीड अलोंग विद बुमराह, उनके बारे में, उसके बारे में जरा बताइए मुझे। एंड योर फाइनल प्रेडिक्शन, क्या हम एक्चुअली, आपको लगता है ये टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं? देखिए, मैंने तो ये बात है कि बहुत अफसोस और ताज़ियत करूंगा मैं एज ए मुसलमान और एज ए आपकी कम्युनिटी का हिस्सा है वो, आपने भी बहुत ताज़ियत की और बहुत सपोर्ट किया बीसीसीआई ने, और आपकी टीम ने बड़ी एक बहुत बड़ा जेस्चर दिखाया, उसको ख्याल रखा उसका, और उसको आपने मान सम्मान दिया और कंट्रोल किया, बिकॉज इट्स नॉट इजी लूजिंग ए फादर एंड समवन जस्ट ग्रोइंग अप वाचिंग प्लेइंग फॉर हिंदुस्तान। कम ऑन मैन, इट्स अ ड्रीम कम्स ट्रू। और बाप ने कितना सोचा होगा, क्या ख्वाब देखे होंगे मेरा बेटा हिंदुस्तान के लिए खेले और हिंदुस्तान को जिताए और जिताए। काश ये वो लम्हा वो अपना बाप इनका देख सकता था, अनफॉर्चुनेटली ये ना हो सकता। सो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी इमोशनल टाइम फॉर हिम, और बड़े इमोशनल परफॉर्मेंसेस होंगी। 5 उन्होंने आउट किए, 3 मेरे ख्याल में, 1 में 2, 1 में किए, राइट। लेकिन ये इमोशनल टाइम को टीम ने संभाला। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ बोरिया कि हिंदुस्तान की खूबसूरती ना पोलराइजेशन में है, डेमोक्रेसी में है, सेकुलर में। आप बहुत सेकुलर बंदे हो। मैं बहुत सारा पाकिस्तान में लोगों को कहता हूँ हिंदुस्तान के बारे में कि जितना मैं हिंदुस्तान को जानता हूँ शायद ही कोई इतना अच्छा जानता हो, बिकॉज इतना तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ट्रैवल नहीं किया हो जितना मैंने ट्रैवल किया 5-6 सालों में हिंदुस्तान को। जो जो मैंने हिंदुस्तान को देखा है, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल दैट आई केम अक्रॉस एंड द मोस्ट अमेजिंग पीपल दैट आई केम अक्रॉस। और हर कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, और टैलेंट को सेलिब्रेट करते हैं वो। कास्ट क्रीड से आगे होके जब टैलेंट उनके पास आता है तो कास्ट क्रीड से आगे निकल के वो उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसको इसका मजा लेते हैं और एंटिटी बनाते हैं और ब्रांडिंग करते हैं उसकी। सो दिस इज द वन बेस्ट थिंग अबाउट हिंदुस्तान, दैट दे नो हाउ टू ब्रांड देयर ब्रांड्स। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सिराज को लाए, आईपीएल में थोड़ी मार खा गए वो, ये किया, बातें हुई, तो मुझे लगा शायद उनको ड्रॉप कर देंगे। बट again, not to shock myself, but उनको टेस्ट टीम में डाला गया। जब वो बॉलिंग करने आए तो जब बॉलिंग में मैंने उनका एटीट्यूड देखा, ना सिर्फ अपने वाल साहब की वफात पे गुस्सा भी उतार रहे थे, दुख भी निकाल रहे थे, वफात का गुस्सा भी निकाल रहे थे, और ये भी चाहते थे कि शायद कहीं वो ऊपर देखे कि मेरा बेटा हिंदुस्तान के लिए एक जीत को दर्ज कर रहा है, रकम कर रहा है। और मुझे लगा कि फैसिनेटिंग टैलेंट है और कैरेक्टर दिखाया उन्होंने, और मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनसे। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले वक्तों में आने वाले टेस्ट मैचेस में मैं बोरिया, अगर पता नहीं मेरी बात ये शायद आपको हजम हो ना हो या पूरी दुनिया को हजम हो ना हो, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को बॉडी लाइन बॉलिंग करनी चाहिए। अच्छा, बॉडी लाइन बॉलिंग करनी चाहिए हिंदुस्तान को, क्योंकि इनको अब फेंटना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। नॉट टू आई एम गोइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई लव ऑस्ट्रेलिया, मेरी बहुत फैन फॉलोइंग ऑस्ट्रेलिया में, बट हिंदुस्तान को अब बॉडी लाइन बॉलिंग पे जाना चाहिए। 4 बॉलें आउट करने के लिए करें, लेकिन 2 इधर भी सेकें। अब इट्स टाइम नॉट टू ओनली टू विन बट टू हर्ट एट द सेम टाइम। जब वेस्ट इंडीज खेलते थे तब वो आउट भी करते थे और मारते भी थे साथ। सो अपने 36 का बदला लेने के लिए आई थिंक हिंदुस्तान नीड्स टू गो आउट देयर, मेक श्योर जो बॉडी लाइन बॉलिंग थोड़ी मिसिंग है ना, और जो डिसेप्टिव बंदा है सिराज और
ये बुमराह, ये डिसेप्टिव बाउंसर करते हैं, ये इनको थोड़ी सी इनको फैंटी लगानी चाहिए ऑस्ट्रेलियंस को, और मारना चाहिए, और ब्रूजेस छोड़ने चाहिए, not only the bruises of the feet, and the bruises of the body needs to be left behind. This is what I did against England. You know, this funny story that, you know, we playing a World Series in Australia. I had a lot of knee problems. I had knee problems since like 1997. मैं ऑपरेशन करा के तो मैं, इमरान खान भी कहते थे, प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे, शोएब को तुम बहुत लेट खिला रहे हो, इसको 94 में खिलाना चाहिए था, मेरा डेब्यू 93 का फर्स्ट क्लास का, आई एंड अप प्लेइंग इन 98, तो जो मेरे माइलेज थे घोड़ों के वो निकल गए थे मेरे. सो यू बेस्ट ऑफ माय फिटनेस यू प्रॉब्ली सीन इन द वर्ल्ड कप. मैं उसके बाद कभी फिट रहा ही नहीं. सो वर्ल्ड सीरीज हो रही थी तो फ्लिंट ऑफ क्रैक्ड अ जोक. मैंने उसे कहा, यार फ्लिंट, मैं एंड फ्रेडी को मैंने कहा, फ्रेडी आई एम नॉट फिट, आई प्रॉब्ली गोना हैव अ ग्रेट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, and I'm not going to be able to, you know, deliver as much as you expected from me. तो मेरे गोडे शोडे बहुत जख्मी थे, तो मेरे लूज बॉडीज बहुत थी, लूज बॉडी बहुत पड़ी हुई थी, तो मेरा घुटना जैम हुआ था. So then I bowled a couple of wonders. Then he cracked a joke. He said, "Listen, Shoaib, you look like a Tarzan. You bowl like a Jane, by the way." I go, "What are you saying? Do you think I'm a Jane now?" They said, "No, I think you're bowling like a Jane." I go, "Are you touring to Pakistan?" Yes, I will come into Pakistan. We just won the Ashes series or coming to Pakistan. मैं कहा okay. मैंने लैंड किया. I came to know they are probably dropping me from the Pakistan team because of recent performances of mine in the World Series, and then some wise guy, the couple of wise guys of my Pakistan, he says, "Listen, sir, we need a pace in this country. If we don't play Shoaib, I think we're going to end up losing the series. We need a pace. We need a tear away. Father, please, आप ऐसा ना करें, उसको ड्रॉप मत करें." अच्छा जी, मुझे 2 दिन पहले बताया जी, आप आ जाए, मेहरबानी आपकी, हम आपको खिला रहे हैं. मैं जी, बड़ी मेहरबानी, आप मुझे खिला रहे हैं. अच्छा जी, मैं गया डॉक्टर के पास. So Boria, we had about 7 injection in my knee, and मैंने कहा मेरा घुटना नम कर दे यार प्लीज. कहता शोएब ग्राउंड कैसे फील करेगा, कि तुम्हारी सारा मैं घुटना नम. This has happened in Centurion. This has happened in for me for 10 years, Boria. I could not feel the grass because we run. We used to brush off the grass, and we know कि हमारा पैर कहाँ लैंड कर रहा है. So हमारा कहीं भी टिल्ट हो हमें पता लगता रहता है. So we have a sensors in the underneath our feet, जहाँ पे तलवा होता है, so जो हमारे सेंसर लगे होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमने यार इस टो को खींचना है तो इतनी पेस आनी है, हमने 5 टोज को ऐसे खींचना है तो हमारे नेल्स इतने लगे हो तो हमने इतनी पेस आएगी, हम इतना जर्क मारेंगे तो इतनी पेस आएगी. वो सेंसेशन ही गायब होगी. तो उन्होंने कहा, व्हाई यू डूइंग दिस टू योरसेल्फ. मैंने कहा जी, आई एम डूइंग दैट फॉर मिस्टर एंडी फ्लिंटॉफ. मैंने कहा व्हाई. मैं कहा ही कॉल्ड मी अ जैन. he said, why did he call you a Jane? मैं कहा यार he doesn't understand, मेरे घुटने ठीक नहीं है. बहरहाल मैंने कुछ 7-8 इंजेक्शन लगवाया, घुटना नम हो गया, और टेस्ट सीरीज आ गई, सर पे आ गई, मुल्तान आ गया. तो मैंने टीम से कहा कि यार देखो, पहले नहीं, अगर बॉलिंग थोड़ी अच्छी ना हो जाए माफ कर देना, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा. ये जो आ रहा है ना, द गाय लुक्स आउट द प्रोपोर्शन, ही इज नॉट एज गुड लुकिंग एज मी, सो आई एम गोना हर्ट हिम. सो व्हाट वी डिड, I kept on hitting him in every innings, in every test match. I made sure he get a lot of bruises. He did that. And मैंने फिर जब टेस्ट सीरीज हम जीत गए, हम बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव भी जीत गए, तो ट्रेस्कॉथिक बहुत अच्छा खेला. वो रोने वाला हो गया था ट्रेस्कॉथिक टेस्ट सीरीज में, और इंग्लैंड टीम रोने वाली हो गई थी. तो क्या यार हमारे साथ हुआ क्या, मेरे ख्याल आई थिंक गॉट 17-18 विकेट्स. वो जो स्लो रन पे आउट किए थे मैंने जब लाहौर में, अगर आपको याद हो, वो फुटेज आपके पास मिल जाएंगे. मैंने आई केप्ट ऑन हिटिंग फ्लिंटॉफ इन फैसलाबाद. ही सेज, आर यू गोइंग मैड शोएब, तुम्हें क्या हो गया है, पागल तो नहीं हो गए. मैंने कहा नहीं, मुझे यार मजा आ रहा है यार, तूने मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना है. उन्होंने कहा शुक्रिया अदा करना, वो क्यों. मैंने कहा यू एक्चुअली ब्रॉट मी अलाइव, यू जस्ट मेड मी फील मोर अलाइव बिकॉज आई वाज डेड मीट. When I landed from Australia, you actually made me realize that I can actually hurt you and win the test matches for Pakistan. उन्होंने कहा यार ये मुझसे गलती होगी, अब वनडे में क्या करेगा. मैं वनडे में नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं. तो फिर मैंने बॉलें मारी उसको,
तो फिर मुझे कहता है टेस्ट सीरीज के बाद, कहता है यार शोएब, अनफॉर्चुनेटली और लकीली और पता नहीं आयरॉनिकली यार, आई मेट टू पीपल विद इन 2 months. One in Australia, the guy was having a great time, and the one I met in Lahore that was so focused and scoring so quick, and he was getting quicker and quicker every day, and you're getting quicker throughout the day, and even till the day ends, you're more quicker than in the morning. तो मुझे अजीब सा लगा यार कि मैं 2 बंदों से मिल रहा हूँ 2 महीनों में। तो मैंने कहा यार थैंक्स टू यू फ्रेडी, तो तुम मुझे ना जगाता तो मैं जागता ही ना, मुझे मारता ही ना। तो वो अब टेस्ट सीरीज जीत गए, फिर वनडे बड़े आराम से हम जीत गए। तो माय प्रेडिक्शन इज फॉर इंडिया, बोरिया, आई रियली बिलीव दैट कि जीतो सही, लेकिन आप मार के जीतो। जब आप कमांड में आ जाते हो, फिर probably I'm a fast bowler, very aggressive, who thinks very aggressively, but I believe there's a borderline bowling is missing from India, and there's a borderline bowling is missing from Australia too. स्टार्क जब तक, अगेन मैं याद आ गई बहुत, जब तक स्टार्क बॉलिंग ये कर रहा था, उसका बॉल भी अंदर आ रहा है, लेंथ बॉल भी तेज आके पेट में लग रहा है। यहां से कितना लोड कर लेगा भाई, यहां से कितना लोड हो जाएगा, जितना मर्जी तू लोड कर ले, यहां से बॉल तेज नहीं जाना। तो स्टार्क गलती कर रहा है अपने साथ। वो जो उसका पहला पुराना एक्शन है ना, वो पुराना, उसमें लोड बहुत अच्छा होता है, उसमें लोड अच्छा होता है, सब बाउंसर तेज होता है। यहां से निकाल के बॉल करना इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर हिम। मैंने उसको मैसेज भी भिजवाया, मैं कहा तुम पागल तो नहीं होंगे, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर एंकल बचा रहे हो या अगर तुम अपना बैक बचा रहे हो, कुछ बचा रहे हो, दिस इज नॉट द वे टू लूजिंग योर आर्म स्पीड। ये मैंने आमिर को भी समझाया, उल्लू को, और मैंने उसको सुनाई। मैं उसको 7 महीने पहले कहा था, तुम्हारा रनअप की पेस चली गई है, योर पेस ऑफ द रनअप इज गॉन, योर लैंडिंग पेस इज गॉन, एंड देन यू कमिंग आउट द फॉलो थ्रू, जिसे फॉलो थ्रू कहते हैं, उसपे स्नैप चली गई है। तो तुम मेरे साथ लग के ट्रेनिंग करो, तो मैं तुम्हें चीजें सिखा दूं। अब वो टीवी बैठ कर रो रहा है तो मुझे साथ ज्यादती हो रही है। यार ज्यादती क्या हमारे साथ नहीं हुई? मुझे तो हर रोज तो कंट्रोवर्सी का निशाना बनाए रखते थे। हालांकि नॉट नोइंग द फैक्ट मेरे जैसा बंदा 200 साल में एक दफा पैदा होता है, जो फास्टेस्ट बॉलर कर रहा है, जो फास्टेस्ट बॉलिंग कर रहा है एवरी डे, वो नॉर्मल नहीं हो सकता। वो नॉर्मल कैसे हो सकता है यार, खुद सोचो। तो मैंने कहा यार जी मुझसे पूछ ले आगे आमिर, मैं तुझे बता दूं कि तुम्हारी रनर स्पीड, आर्म स्पीड क्यों स्लो हो रही है, तुम्हारा शोल्डर का जो स्पीड है, शोल्डर स्पीड है। अब ये बातें बोरिया, मैं किधर जाके मत्था मारूं, मैं बच्चों को समझाता रहता हूँ। ओ भाई, आर्म स्पीड एक चीज होती है, फॉलो थ्रू की स्पीड एक चीज होती है, स्नैप और चीज होती है। जो भी मेरे से फास्ट बॉलर होगा, ब्रेट ली, उसका चेस्ट बड़ा होगा, लेकिन वो साइड ऑन होगा, वो इससे स्नैप करेगा, क्वार्टर लंबोरस लगा हुआ है यहाँ पे, वो उससे स्नैप करेगा, वो स्लिंग शॉट बनाएगा अपना। आमिर को भी यही समझा रहा था, बेचारे को ट्रेनिंग करा, वो भी एक बात वो ठीक कह रहा है कि ज्यादती करते हैं उसके साथ, ये भी बात ठीक कह रहा था कि उसके साथ भगा वो भाई, कार्डियो इज अ मसल वेस्टिंग। मैं अपनी मिसाल दे बैठा हूं, मैं 20 इंच थाइस के साथ जाता था तो मैं 25 इंच थाइस से बाहर निकलता था टेस्ट सीरीज में। मैं इतना जाता था तो मैं इतना निकलता था बाहर टेस्ट सीरीज से। और जब इतना जाओगे टेस्ट सीरीज में, बोरिया, थिंक अबाउट इट, तो कितना निकलोगे बीच में से? तो थिंक अबाउट यार, ब्रेन यूज करो यार। पहले पानी जाएगा जिस्म से, फिर फैट रिजर्व जाएगा, फिर मसल मैस जाएगा, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, जोड़ पे जोर आ जाना। यू ultimately you're putting pressure on your knee joints or the joints that was working for you. मसल, अल्लाह ने मसल लगाया हुआ जोड़ के ऊपर, अगर वो जोड़ ही कमजोर हो, वो अगर मसल ही कमजोर हो जाए तो जोड़ ऑब्वियसली कॉम्पनसेट करेगा उसको। तो लोग समझते नहीं यार कि ओवरलोडिंग किस तरह की जाती है। ओवरलोडिंग इतना ब्रूसली टाइप की जाती है। मैं आर्नल्ड टाइप बॉडी नहीं कह रहा, मेरी तो बॉडी यहाँ पे फ्लेक्सिबल थी, मुझे मसल जरूरत थी। मैं ब्रूसली टाइप बॉडी की कह रहा हूँ कि मसल, थिक मसल, 2 मछलियां आगे पीछे बैक पे लगी हो, आपका आर्म बना हो, शोल्डर आपका बना हो, उसमें तकरीबन कोई 2000 रैप लगाओ। All I will say is this was a magical conversation, Shoaib. A magical conversation. Masterclass on fast bowling, on Jasprit Bumrah, on mental disintegration, if I can call it that. Your suggestions to the Indian team. More importantly, I loved talking to you on Sports Today. So that's all I will say. Stay well, stay healthy. I met your son virtually. At some point in time, maybe we will be able to meet physically also.
It's going into 21. Have a good 21, you and the family. Stay well, stay healthy, and sooner than later, I'm sure, in a better world, in a COVID-controlled world, we will be able to physically catch up and talk cricket again. But for the moment, thanks for your time. It was absolutely brilliant talking to you.